Welcome friends in today's session of business regulatory framework, and we are today going to complete unit 3 in Indian Contract Act 1872 agency chapters. Last topic today we will cover, and that question is discuss the responsibilities of agent. You can also add principal. Discuss the responsibility of agent and principal towards third party. So today we are going to discuss in triangle way that what are the responsibilities of agent, or it may be what are the responsibility of principal, or it what are the responsibility of agent and principal together towards third parties. What is the triangle question, pattern of triangle question of agency contract. So let us try to understand this concept. So what are the position of principal and agent in relation to third party? It is a general rule of agency that an agent acting on behalf of the principal enters into a contract with third parties. The principal is liable to the third parties for the acts of the agent. The position of the principal towards third party may be discussed under the following acts. We are going to deal with that. We know very well in agency contract there are two parties, principal and agent. Principal is a person who appoints agent for acting on his behalf, and the agent is a person who is going to represent his principal in the agency contract, and is going to make contract with whom? To third parties on behalf of principal. So over here, who is liable under the contract, sir? Principal is liable to third party under the contract for the acts made by agent. So the position of the principal towards third party may be discussed under the following heads. Let us try to understand what are the heads under which the position of the principal towards third party, or the responsible of principal towards third party, can be discussed. Also, the agent position under it is under covered under the topic. First is when the agent contracts for a named principal. What is the situation? What is the position of the principal? When the agent contracts for an unnamed principal. And the third one is when the agent contracts for an undisclosed principal. So there are three types of principals: named principal, unnamed principal, and undisclosed principal, or are different concepts. So let us try to understand what is the position of principal and what is the responsibility of agent when the principal is named. जहाँ पे मालिक का नाम पता हो वहां पे एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, साथ साथ में प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखते हैं, समझते हैं. Named principal refers to where at the time of making the contract with a third party, the agent discloses the existence as well as the name of the principal. कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी से कहता है कि ये मेरे मालिक है, इनका ये नाम है, और उस वक्त वो मालिक मौजूद है, ये उसका एग्जिस्टेंस है, उनका नाम है, उनकी पहचान है, और थर्ड पार्टी जानती है. तो ये डिस्क्लोज किया गया है, ये बताया गया है. इस सिचुएशन की अब हम बातें करेंगे. इस सिचुएशन में जो पॉइंट्स बनते हैं उसकी हम बातें करते हैं. सो फर्स्ट सेक्शन में पहला पॉइंट आ रहा है, एक्ट ऑफ द एजेंट आर द एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल एज पर सेक्शन 226. So the contracts entered into through an agent and obligations arising from acts done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal consequences as if the contracts had been entered into and the acts done by the principal in force. जो भी एक्ट एजेंट कर रहा है सर, किसके लिए कर रहा है सर? प्रिंसिपल के लिए कर रहा है. Whatever the acts are done by agent are the acts done by the principal. Obvious है. यहाँ प्रिंसिपल करेगा, प्रिंसिपल नहीं करेगा, प्रिंसिपल हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए तो एजेंट की अपॉइंटमेंट की है. यानी एजेंट जो काम कर रहा है वो प्रिंसिपल ही कर रहा है, और यहाँ तो प्रिंसिपल जो काम कर रहा है वो एजेंट कर रहा है, वाइस वर्सा. तो जो भी एक्ट किए एजेंट ने, उसकी जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगी, जो भी रिजल्ट आएगा सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी सर? ऑब्वियसली मालिक की होगी, प्रिंसिपल की होगी. मालिक नहीं कर पा रहा इसीलिए तो एजेंट कर रहा है. तो एजेंट ने जो भी कार्य किया है वो मालिक ने किया है, ऐसा माना जाएगा. वॉट एवर द एक्ट्स डन बाय एजेंट आर द एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल. तो कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो जिम्मेदार कौन माना जाएगा? वैसे एजेंट माना जाएगा, क्योंकि एजेंट रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, लेकिन अल्टीमेटली कौन
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर? प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर अल्टीमेटली, फाइनली। व्हेन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, सेक्शन 227, जो पावर्स जो अथॉरिटी दी गई है उससे अगर ऊपर जाके कुछ काम किया जाए, बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम किया जाए, तो फिर क्या क्या सिचुएशन होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर? देखते हैं। When an agent exceeds his authority to do work of the principal is bound by that part of the work which is within the authority and which can be separated from the part which is beyond his authority. Thus, the principal is not bound by unauthorized acts of his agent. यानी एजेंट को जितनी सत्ता दी गई है उसी सत्ता के अंदर, उसी पावर के अंदर रह के उसने काम करना चाहिए। बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द अथॉरिटी, बियॉन्ड द पावर जाके काम नहीं करना है। अगर उसने अपनी अथॉरिटी से ऊपर जाके कुछ काम किया है, जो पावर्स उसे दिए गए हैं उसके ऊपर जाके अगर कोई काम किया है, तो सर उस सिचुएशन में प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर द अनऑथराइज एक्ट डन बाय द एजेंट। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो एक्ट किया गया है उसमें ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड को हम अगर सेपरेट कर सकते हैं, तो जो ऑथोराइज्ड एक्ट है उसको वैलिड माना जा सकता है, उसको रेटिफिकेशन दिया जा सकता है। लेकिन अनऑथोराइज्ड एक्ट अगर कुछ किया है, सेपरेट हो सकता है, और अनऑथोराइज्ड पता चल रहा है कि ये एक्ट करने की सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है एजेंट को, फिर भी उसने ये किया है, तो सर वो प्रिंसिपल को बाइंडिंग नहीं होगा। ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट विच इज डन बाय द एजेंट by going beyond the authority if he exceeds its authority. If the unauthorized portion cannot be separated from the authorized one, वो तो सेपरेट हो रहा था, अब सेपरेट नहीं हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? इफ द अनऑथोराइज्ड पोर्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑथोराइज्ड वन, द प्रिंसिपल कैन कैंसल द होल ट्रांजेक्शन। द प्रिंसिपल कैन कैंसल द होल ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन 228। सेपरेशन नहीं हो सकता है कि भाई हम वहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भाई ये ऑथोराइज्ड पार्ट है, ये अनऑथोराइज्ड पार्ट है। इस तरीके से हम बाइफर्केशन, क्लासिफिकेशन, सेपरेशन, एलोकेशन अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम पूरा ट्रांजेक्शन, एज अ प्रिंसिपल ही कैन कैंसल द ओवरऑल ट्रांजेक्शन, ही कैन रिवोक द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं इसके बेसिस पे। एन एजेंट इज ऑथोराइज टू बाई 500 शर्ट्स। The agent, in addition to buying 500 shirts, buys 300 pants also for rupees 12,000. The principal will not be liable and he may cancel the whole transactions. अब एजेंट को अथॉरिटी थी सर 500 शर्ट खरीदने की। जनाब ने क्या किया? 500 शर्ट्स तो खरीदे, साथ साथ में 300 पैंट्स भी खरीद ली, और दोनों का जो पेमेंट है मर्ज करके अकाउंट किया गया है। मीन्स ये पूरा सेट है, यूँ समझ लीजिए। 500 शर्ट्स के साथ आपने 300 पैंट खरीदी थी, ऐसा ऑफर था, तो जनाब ने 12,000 का पेमेंट कर दिया इतनी चीज़ों के लिए। द प्रिंसिपल इज नॉट लायबल एंड ही मे कैंसल द होल ट्रांजेक्शन। ये सेपरेट नहीं हो सकता, ये सिचुएशन ऐसी सेपरेशन नहीं हो सकता। मर्ज पेमेंट किया है मीन्स दोनों का एक साथ अगर बिल बना हो, मीन्स मेरी कहने की बात यह है कि 500 शर्ट्स और 300 पैंट लेंगे तो 12,000 का आपका पेमेंट बन रहा है। इट इज़ नॉट, द अमाउंट इज नॉट सेपरेबल, ऐसी सिचुएशन है। अगर सेपरेट हो जाता तो दिक्कत नहीं है, ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है बिकॉज देर इज अ सिंगल अमाउंट फॉर 500 प्लस 300 पैंट्स। 500 शर्ट और 300 पैंट को मिला के 12,000 का सिंगल अमाउंट, सेपरेट सेपरेट नहीं है कि भाई 500 शर्ट का आपने 8,000 देना है, 300 पैंट का 4,000 देना है, ऐसा नहीं है, कंबाइन अमाउंट है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल इज नॉट एट ऑल लायबल। क्यों? एजेंट एज एक्टेड बियॉन्ड इट लिमिट्स, अपनी पावर्स, अपनी अथॉरिटी के ऊपर जाके उसने काम किया, अनऑथराइज्ड काम किया है सर, वो काम नहीं कर सकता है एजेंट। अगर करता है और सेपरेट नहीं हो सकता है, तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल एंड ही मे कैंसल द होल ट्रांजेक्शन। 1 रुपया देने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की नहीं बनती है। ये इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस ट्रांजेक्शन को वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है, कैंसिल मान सकता है। नोटिस गिवन टू एजेंट एज नोटिस गिवन टू द प्रिंसिपल। जैसे एक्ट ऑफ एजेंट इज कंसिडर एज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, वैसे ही अगर एजेंट को कोई नोटिस दी जा रही है, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई नोटिस आ रही है, बाहर की व्यक्ति से, एक्सटर्नल व्यक्ति के पास से कोई नोटिस आ रही है, तो अगर एजेंट को कोई नोटिस मिली है तो वो नोटिस किसको मिली मानी जाएगी?
प्रिंसिपल को मिली जाएगी। जैसे स्टूडेंट को कोई कॉलेज नोटिस भेज रहा है, तो वो स्टूडेंट को जो नोटिस भेजी गई है वो एक तरीके से उसके फादर को भेजी गई है, फादर उसके प्रिंसिपल है और स्टूडेंट एजेंट, यहाँ वैसा माना जाएगा एक तरीके से। सो ये रिलेशनशिप समझना जरूरी है एज पर सेक्शन 229। व्हेन एनी नोटिस इज गिवन टू और बाय द एजेंट regarding the information of the business transaction, even then it shall have the same effects as if the notice had been given to or by the principal। यानी मैंने जो कहा जैसा हेडिंग है वैसी ही बात है, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन की नोटिस हो, अगर वो एजेंट को दी जा रही है, इसका सेम इफेक्ट यही होगा कि एजेंट को मिली हुई नोटिस वो मालिक को मिली हुई नोटिस के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इट मीन्स दैट द नॉलेज ऑफ द एजेंट इज द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। स्टेटमेंट याद रखना, द नॉलेज ऑफ द एजेंट इज द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट एप्लीकेबल व्हेन द एजेंट हैज कमिटेड अ फ्रॉड ऑन हिज प्रिंसिपल। जितना ज्ञान एजेंट को है उतना ही ज्ञान प्रिंसिपल को है। जो नोटिस एजेंट को मिली है, यूं समझ लीजिए वो नोटिस प्रिंसिपल को मिली है रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कोई भी लीगल नोटिस हो सकती है या गुड्स से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन वाली नोटिस हो सकती है, तो वो किस पे लागू होगी, किसको बाइंडिंग होगी सर? प्रिंसिपल। अल्टीमेटली हुज रिस्पॉन्सिबल सर? प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस, एक्सेप्ट इन वन केस। एक सिचुएशन को आपको छोड़ देना है, अगर एजेंट ने कोई फ्रॉड कमिट किया है तो सर वहां पे प्रिंसिपल लायबल है, एजेंट लायबल नहीं है सर। सॉरी, एजेंट लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं है। माइंड यू, अगर एजेंट ने फ्रॉड किया है दोस्तों, तो वहां एजेंट लायबल होगा, वहां उस सिचुएशन में प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, क्योंकि एजेंट को पता है उसने क्या किया, प्रिंसिपल को तो पता नहीं है। सो ओवर हियर द statement knowledge of the agent is the knowledge of the principal is not accepted। चलिए, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर अनऑथोराइज्ड एक्ट्स। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर अनऑथोराइज्ड एक्ट्स। पहले दो सिचुएशन में क्या था सर? पहले दो पॉइंट में क्या था सर? ऑथोराइज्ड एक्ट, अनऑथोराइज्ड एक्ट ही था, सेपरेशन और सेपरेबल है या अनसेपरेबल है, ये सिचुएशन थी, ये बातें थी। लेकिन अब क्या है सर? प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर अनऑथोराइज्ड एक्ट में क्या आएगा सर? व्हेन एन एजेंट हैज विथआउट ऑथोरिटी डन एक्ट और इनकर्ड, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, नीचे बात करो, नीचे नीचे मैडम है ना, उनसे बात करो। तो प्रिंसिपल को मिलो, मैं थोड़ी प्रिंसिपल हूँ। मैं धरित सर को कांटेक्ट करो, अवेलेबल है धरित सर, कोऑर्डिनेटर। कांटेक्ट धरित सर, ऑडिटोरियम में होंगे शायद, सामने हॉल में। हाँ, ऑडिटोरियम में उनसे बात करो, ठीक है। हाँ जी, चलिए, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर अनऑथोराइज्ड एक्ट सेक्शन 237, इसकी चर्चा करते हैं। आगे जैसे हमने देखा, कुछ ऐसे एक्ट थे विच इज सेपरेबल एंड अनसेपरेबल रिलेटेड विथ ऑथोराइज्ड और अथॉरिटी गिवन टू द एजेंट। अब यहाँ प्रिंसिपल की लायबिलिटी क्या बनती है अनऑथोराइज्ड एक्ट में, ये चर्चा करनी है। वहाँ एजेंट की बात थी, एजेंट ने कोई अनऑथोराइज्ड एक्ट किया हो तो क्या। अब यहाँ प्रिंसिपल अगर अनऑथोराइज्ड एक्ट करे तो क्या, खुद गब्बर गलती करे तो क्या, वो सिचुएशन है दोस्तों। So let us try to understand what is the principal liability for unauthorized act. When an agent has without authority done act or incurred obligation towards third person on behalf of his principal, the principal is bound by such act or obligation if he has by his words or conduct induced such third person to believe that such act or obligation were within the scope of agent's authority। Thus, here the liability of the principal is based on the doctrine of एस्टोपल। ये तीसरी बार टॉपिक आ रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। तीन बार हम दो बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। एजेंसी बाय एस्टोपल हम आगे पढ़ चुके हैं, क्रिएशन ऑफ एजेंसी में, और कुछ राइट्स और ड्यूटीज में भी था एजेंट की। सो ये टॉपिक रिपीट हो रहा है। यहाँ क्या सिचुएशन है सर? एजेंट जो है प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बिना कोई एक्ट करता है, और वो एक्ट करते वक्त प्रिंसिपल उसे टोकता भी नहीं है।
प्रिंसिपल वहां प्रेजेंट भी होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वहां कोई भी क्या कहते हैं कि भाई वो इसका विरोध नहीं करते, चलने देते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ एजेंट इज ट्राइंग टू इंड्यूस थर्ड पर्सन, agent is trying to induce third person that he is an agent of the principal। यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सिचुएशन को कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई एजेंट बातचीत कर रहा है, व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है, ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, और एजेंट इस तरीके से व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है विथआउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल कि भाई ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, ऐसा कन्विंस कर देता है, सामने वाले को इंड्यूस कर देता है, और थर्ड पर्सन भी मान लेता है कि हाँ भाई ये एजेंट है और वो उसका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल इसका विरोध भी नहीं करता, जबकि एजेंट के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, जबकि वो एजेंट है ही नहीं उसका, ना ही वो प्रिंसिपल है ना ही एजेंट, ऐसा कोई एजेंसी रिलेशनशिप ही नहीं दोनों के बीच में। लेकिन अगर प्रिंसिपल कोई विरोध नहीं करता है और थर्ड पर्सन एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वहां पे सर कौन लायबल होगा? सर प्रिंसिपल लायबल, क्योंकि प्रिंसिपल सुन तो रहा है ना सब। आपके सामने अगर कोई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एजेंट हो और आप सामने वाला बंदा प्रिंसिपल है, तो आपको वहां बताना चाहिए भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा एजेंट नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, प्रिंसिपल है हमारे बीच में, कोई एजेंसी का रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा वहां पे उसको स्टॉप करना चाहिए था। तो अगर वो इस तरीके से स्टॉप नहीं करता है, ही इज नॉट स्टॉपिंग द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग एज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो वहां पे किसकी जिम्मेदारी बन जाएगी सर? प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बन जाएगी टुवर्ड्स थर्ड पर्सन, अगर कोई नुकसान होता है तो। लायबिलिटी इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है सर। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? false statement which is made with mistake and that mistake is innocent mistake। स्टेटमेंट दोनों सिचुएशन में, मिस रिप्रेजेंटेशन हो या फ्रॉड हो, दोनों सिचुएशन में क्या होता है सर? दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग ही है, फॉल्स ही है, और ये अच्छे से जानते हैं दोनों पक्ष का। मीन्स एजेंट अच्छे से जानता है अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को, और जब ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, एजेंट कोई स्टेटमेंट बोलता है, तो वो स्टेटमेंट अगर वो अच्छे से जानता है, जानबूझ के गलत स्टेटमेंट बोल रहा है, इफ ही मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंशनली इट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड, बट इफ ही मेक्स द फॉल्स स्टेटमेंट विथआउट एनी इंटेंशन टू डिसीव अनदर पर्सन, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ उसका कोई इरादा नहीं है कि वो जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली रॉन्ग स्टेटमेंट तो है ना। दोनों सिचुएशन में कॉमन चीज क्या होती है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सर? फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों में एक चीज कॉमन है, फॉल्स स्टेटमेंट तो है ना। फिर चाहे आपने इनोसेंटली बोला हो या इंटेंशनली, निर्दोष तरीके से बोला हो या पूरे इरादे के साथ बोला हो, लेकिन आपने बोला तो गलत ही है ना, आपका स्टेटमेंट तो गलत ही ना, बस तो गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ लायबिलिटी क्या बनेगी? लायबिलिटी इन केस ऑफ इफ एजेंट मेक्स एनी मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एज पर सेक्शन 238, if the agent makes any misrepresentation or commits any fraud during the course of the business of agency, it will have the same effect on the agreement as if they have been committed by the principal। For such acts principal is liable। खास ध्यान रखना, अगर कोई फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है और प्रिंसिपल को इसका ज्ञान है, तो वहां पे प्रिंसिपल लायबल है। ध्यान रखना है आपको भी। ओवर देयर प्रिंसिपल इज लायबल। एजेंसी के बिजनेस में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी बिजनेस अगर ऐसा ट्रांजैक्शन किया जाता है, एजेंट करता है, और प्रिंसिपल को पता है कि एजेंट जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो गलत है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या इज ट्राइंग टू कमिट फ्रॉड, तो वहाँ प्रिंसिपल लायबल है। If the misrepresentation is made or fraud is committed by the agent in matters which do not fall within the agent's authority, the principal is not liable। प्रिंसिपल ने शायद इस तरीके से ही अपॉइंटमेंट की हो एजेंट की कि भाई आपने ये कार्य करना है, इस तरीके से करना है, झूठ बोल के काम करना है, तो एजेंट शायद इस तरीके से कर रहा हो, तो वहां पे प्रिंसिपल लायबल होगा, नॉट एजेंट। लेकिन एजेंट अपने तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, यानी उसको ऐसी अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप गलत स्टेटमेंट बोलें, फॉल्स स्टेटमेंट बोलें, लोगों के साथ चीट करें, फ्रॉड करें,
ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी गई और अपने तरीके से अगर वो ऐसे स्टेटमेंट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है विद द थर्ड पार्टी, तो सर वहाँ पे प्रिंसिपल इज नॉट लायबल ओवर देयर, एजेंट इज पर्सनली लायबल। एग्जांपल लेते हैं, P being R's agent for the sale of copper induced as to buy it for by a misrepresentation. P being R's agent for the sale of copper induced as to buy it by a misrepresentation. P being R's agent यानी P जो है वो एजेंट है। P being R's agent, R कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और P जो क्या हो गया सर, P beings R's agent for the sale of copper induced as to buy it by a misrepresentation। अच्छा, तो R जो है सर ही इज प्रिंसिपल, और P जो है सर यहाँ पे एजेंट है, और R जो है सर क्या कर रहा है सर, थर्ड पार्टी से व्यवहार कर रहा है, उसको कॉपर बेचने की बात कर रहा है, लेकिन उसने फॉल्स स्टेटमेंट किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एज बिटवीन आर एंड एस एट द ऑप्शन ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है एस के पास, एस कौन है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है अदालत जाके, अगर उसे पता चल जाए कि उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है और प्रिंसिपल के कहने पे किया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ वो प्रिंसिपल को कोर्ट में लेके जा सकता है और अपील कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, एंड ही कैन सक्सेसफुली कैंसिल सच कॉन्ट्रैक्ट, इवन ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस इफ एनी loss is bear by the third party। In such situation, principal is liable for the act done by agent on behalf of principal and principal is having knowledge। तो पहली सिचुएशन कंप्लीट हुई हमारी। पहली सिचुएशन क्या थी, आप लोगों को याद होगा, तीन सिचुएशन में हमने चर्चा करनी। पहली सिचुएशन थी व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ए नेम्ड प्रिंसिपल, में 5 पॉइंट की चर्चा की हमने अभी। दूसरी सिचुएशन है व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन अननेम्ड प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम नहीं पता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एजेंट, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बता रहा है। चलिए देखिए क्या सिचुएशन है। इफ द एजेंट व्हाइल कॉन्ट्रैक्टिंग विथ थर्ड पर्सन disclose the fact that he is entering into the contract on behalf of his principal but does not disclose the name of the principal is bound by the contract। थर्ड पार्टी से सिर्फ इतना कहा जाता है कि मैं एजेंट हूँ और मैं अपने मालिक के लिए काम करता हूँ, लेकिन वो मालिक का नाम नहीं बता रहा है। पहली सिचुएशन में वो मालिक का नाम बता रहा है कि भाई मैं मिस्टर एक्स के लिए काम करता हूँ। इस सिचुएशन में वो सिर्फ इतना ही बताता है कि मैं एजेंट हूँ और मेरे एक मालिक हैं, लेकिन वो मालिक का नाम नहीं बता रहा है। ये सिचुएशन, तो यहाँ पे भी यानी वो काम तो किसी, वो एजेंट ही और वो किसी मालिक के लिए यानी कि प्रिंसिपल के लिए ही काम कर रहा है, इतना क्लियर हो गया है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल ही लायबल होंगे, एजेंट को तो मालूम है ना उसके प्रिंसिपल कौन है, उसका मालिक कौन है, तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। However, such acts must be within the scope of the agent's authority and the unnamed principal must be in existence at the time of entering into the contract। यहाँ पे भी एजेंट को एक जब बात का ध्यान रखना है कि उसको जो अथॉरिटी दी गई है उसी अथॉरिटी के अंदर उसने काम करना है, उसी पावर उसी लिमिट के अंदर काम करना है, लिमिट के ऊपर जाके काम नहीं करना है। शुड नॉट एक्ट बियॉन्ड हिज लिमिट, अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी नहीं करनी है, ऑथोराइज्ड एक्टिविटी ही करनी है। unnamed principal must be in existence at the time of entering into the contract। जो भी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वक्त उसका अस्तित्व होना जरूरी है। For such contracts, the agent is not personally responsible unless there is something which shows that he agreed to be personally liable। यहाँ एजेंट की कोई भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ उसके एक्ट के लिए कौन लायबल है सर, प्रिंसिपल ही लायबल है। हाँ, अगर उसने पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट की हो खुद कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर उसने स्पष्ट लिखा होगा फॉर द एक्ट और फॉर द लॉसेस ही इज रिस्पॉन्सिबल, तो फिर वहां पे उसकी पर्सनल लायबिलिटी बनेगी, बाकी नहीं बनेगी। थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। दो सिचुएशन कंप्लीट हुई। पहली सिचुएशन थी व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ नेम्ड प्रिंसिपल, कंप्लीट हुआ। दूसरी सिचुएशन अभी कंप्लीट की, व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन अननेम्ड प्रिंसिपल। तीसरी सिचुएशन पे चलते हैं जिसमें डिटेल डिस्कशन होगा, व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन
अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, यानी ना ही नाम है उसका, ना ही अस्तित्व है। neither the name has been disclosed, neither the existence of the principal is disclosed, are called undisclosed principal। ना आता है ना पता है, लापता है, वैसा है अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। When at the time of making the contract with the third party, if the agent neither disclose the name nor the existence of the principal, then it is called undisclosed principal। The agent in such case, in such situation, gives an impression to third party as if he is contracting in independently। यहाँ पे ना ही प्रिंसिपल का नाम बोला जाता है, ना ही उसकी कोई आइडेंटिटी दी जाती है, ना ही उसका अस्तित्व है, ये कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। यानी एजेंट ही खुद प्रिंसिपल है, एजेंट ही मालिक है, और वो थर्ड पार्टी से उसी तरीके से व्यवहार कर रहा है, इंडिपेंडेंटली अपने रिस्क पे ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। यानी मैं ही राजा मैं ही मंत्री, ऐसी सिचुएशन हो गई एजेंट के लिए। एजेंट ही इज हिमसेल्फ रिप्रेजेंटिंग एज ही इज प्रिंसिपल, वो खुद ही ये बिजनेस चला रहा है, ऐसा वो रिप्रेजेंट करता है। Section 231 and 232 of the Contract Act deals with the rights of the parties to the contract made by an agent for the undisclosed principal। अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं आगे सर? What are the rights of the parties to the contract made by an agent for the undisclosed principal? तो वो राइट्स की हम चर्चा करेंगे अब वन बाय वन। राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, इस सिचुएशन में जहाँ पे प्रिंसिपल का ना आता है ना पता है, तो वहाँ प्रिंसिपल के राइट्स क्या है वो देख लेते हैं। When an undisclosed principal is later on discovered or he himself intervenes, the other contracting party may sue either the principal or the agent or both। प्रिंसिपल सामने से आके अपनी आइडेंटिटी बता दे कि भाई ये मेरा एजेंट है और ये मेरे लिए काम करता है, तो फिर अब सिचुएशन क्या हो जाएगी? थर्ड पार्टी डिसाइड करेंगे कि एजेंट पे केस करना है या प्रिंसिपल पे केस करना है या दोनों पे केस करना है। थर्ड पार्टी के अब सामने चाबी आ जाती है, उसके पास तीन तीन ऑप्शन हो जाते हैं। पहले तो सिर्फ एजेंट पे केस कर सकता था अगर कोई नुकसान हो जाए तो, लेकिन अब तो पता चल गया है कि एजेंट है और ये इसका मालिक है, तो वो चाहे तो प्रिंसिपल पे भी केस कर सकता है, एजेंट पे भी कर सकता है, दोनों पे कर सकता है चाहे। The principal may demand also if he requires the performance of the contract from the other contract। प्रिंसिपल को पता चल जाए कि मेरी जगह पे एक तो ये मेरा एजेंट है और अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे प्रिंसिपल को पता चल जाए कि एजेंट अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, अपने हिसाब से बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ प्रिंसिपल क्या कर सकता है सर? ही कैन डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। वो एजेंट हो या थर्ड पार्टी हो, सबसे डिमांड कर सकता है वहाँ पे कि भाई ये तो मेरा बिजनेस है, मेरी चीज़ें आपको बेच रहा है, तो मैं चाहूँ वैसा परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल बात नहीं होनी चाहिए। बट द प्रिंसिपल मस्ट अलाउ टू द थर्ड पार्टी द बेनिफिट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड बाय द थर्ड पार्टी टू द एजेंट। वहाँ थर्ड पार्टी को बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी से जो भी कमिटमेंट किया एजेंट ने वो उसको मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई डिस्काउंट की बात हुई हो कि आपको 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आप अगर कैश पेमेंट करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो बेनिफिट थर्ड पार्टी को 100% मिलना चाहिए। तो ये हो गया राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। अब चलते हैं राइट्स ऑफ एजेंट की चर्चा करेंगे दोस्तों। एज द एजेंट हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बोलिए नीचे है मैडम के पास, चक्षु मैडम। चलते हैं राइट्स ऑफ एजेंट के पास, चलिए। एज द एजेंट हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम, as the agent has entered into the contract in his own name, therefore the third party can hold him personally liable on the contract। As the agent has entered into the contract in his own name, therefore the third party can hold him personally liable on the contract। क्या सिचुएशन है सर, समझ में आ रहा हो तो? कि अगर एजेंट ने अपने अपने हिसाब से कोई एक्ट किया है, अपने नाम पे कोई एक्ट किया है, तो सर वहाँ क्या होगा सर? वहाँ पे थर्ड पर्सन चाहे तो उसको पर्सनली लायबल काउंट कर सकता है, मान सकता है। ही कैन डायरेक्टली शू फाइल अ केस अगेंस्ट एजेंट, एजेंट को अदालत में लेके जा सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है। वहाँ पे वो एजेंट को पर्सनली लायबल काउंट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अपने अपने हिसाब से काम किया है ना। हम तो एजेंट को ही जानते हैं, थर्ड पार्टी तो सिर्फ एजेंट को ही जानता है, वो कहाँ प्रिंसिपल को जानता है। अगर जानता भी है तो वो थर्ड पार्टी पे डिपेंड करता है बाद में कि क्या करना है। पीछे से पता चलता है कि भाई ये इसका प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, तो वो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा किसको लेके जाना है कोर्ट में।
कि एजेंट ने जानबूझ के मुझे बताया नहीं, तो चलिए एजेंट को ही ले चलते हैं कोर्ट में। थर्ड पार्टी, वी विल डिसाइड हाउ टू एक्ट अंडर सच सर्कमस्टांसेस। द एजेंट कैन बी शूड बाय द थर्ड पार्टी एंड ही कैन शूट थर्ड पार्टी एज वेल। दोनों की बात आ जाती है। थर्ड पार्टी को अगर कोई नुकसान होता है तो एजेंट से रिकवरी होगी, एजेंट को कोई नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी से रिकवरी होगी। So far as his rights against the principal are concerned, he continue to enjoy all the rights of an agent against the principal। हम पढ़ चुके हैं आगे what are the rights of the agent against the principal। सारे अधिकार लागू पड़ते हैं इस सिचुएशन में भी, फिर वो नेम्ड प्रिंसिपल हो, अननेम्ड प्रिंसिपल हो या अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल हो। जो भी राइट्स एजेंट को मिले हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो तो उसके रहने ही वाले हैं सर। ही एंजॉयज ऑल दैट राइट्स, यानी एजेंट के राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो हमने प्रिंसिपल के राइट्स की बात की, एजेंट के राइट्स की बात की, वैसे थर्ड पार्टी के राइट्स भी आते हैं सर। तीसरी पार्टी के पास आ रहे हैं थर्ड पार्टी। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी देखते हैं। इफ द थर्ड पार्टी डिस्कवर्स दैट देयर इज अ प्रिंसिपल, ओ इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ एजेंट ही नहीं है, इसका मालिक भी है। जैसे ही थर्ड पार्टी को पता चलता है तो थर्ड पार्टी क्या कर सकती है सर, उसके पास तीन ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। या तो वो एजेंट के ऊपर केस कर सकता है, या तो प्रिंसिपल के ऊपर केस कर सकता है, या दोनों को साथ में जॉइंटली उनके ऊपर केस कर सकता है। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी इफ ही हैड ऑलरेडी नॉट ऑब्टेन्ड एनी एक्शन अगेंस्ट द एजेंट। अगर उसने किसी के ऊपर भी केस नहीं किया है, अगर लॉस होता है तो केस करने की बात आती है, कुछ गड़बड़ होती है तो ही, कुछ नाइंसाफी हो जाए, कुछ मनमानी हो जाए, थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान हो रहा, तभी केस करने की बात आती है, तभी लीगल एक्शन लेने की बात आ रही है सर। अगर उसने एजेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया, लीगल एक्शन नहीं लिया, तो उसके पास ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। If the third party decides to file a suit against the principal, he must allow the principal the benefit of all payments received by him from the agent। अगर वो प्रिंसिपल के ऊपर केस करता है तो प्रिंसिपल को भी नुकसान नहीं होना चाहिए कि वो एजेंट से रिकवरी नहीं कर सकता है सर। वो बाद में एजेंट से रिकवरी करेगा। अगर एजेंट की वजह से नुकसान हो रहा है, दैट कैन बी रिकवर्ड बाय द प्रिंसिपल टू लेटर ऑन। फोर्थ पॉइंट देखते हैं सर। तीन राइट्स की बात होगी तीन पार्टी की, आगे और क्या हो सकता है, तो थर्ड पार्टी की थोड़ी कंटिन्यूटी के आगे थर्ड पार्टी में रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड पार्टी को पीछे से पता चल रहा है कि ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, तो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा कि अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस देना है या नहीं देना है। अगर मुझे पता होता कि ये प्रिंसिपल है, आप एजेंट हो मुझे पता था, लेकिन यानी कि आप एजेंट हो मुझे नहीं पता था, लेकिन आपका मालिक ये है। अल्टीमेटली आप एजेंट तो हो ही नहीं, पहली बात ये, आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि आप मालिक हो, आप ही बिजनेस कर रहे हो, पहली बात ये थी, यानी आपने गलत किया। चलिए ठीक है, आपने गलत किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका मालिक ही अगर होता और मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे कभी ये व्यवहार नहीं करता, मैं आपसे ट्रांजेक्शन नहीं करता। तो इस तरीके से अगर वो चाहे, थर्ड पार्टी कैन रिफ्यूज, ही कैन डिनाई टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ लेटर ऑन ही डिस्क्लोजेस दैट दिस इज द प्रिंसिपल। परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात हो रही है सर। व्हेन वन पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद another, neither knowing nor having any ground to suspect that the person with whom he has entered into contract is an agent. The principal, if he requires the contract to be performed, can obtain such performance subject only to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract। अब यहाँ परफॉर्मेंस की बात आ रही है सर। तो परफॉर्मेंस की तभी डिमांड की जाएगी सर, कब डिमांड की जाएगी सर, कि यहाँ पे पार्टीज को पता ही नहीं एक्चुअली। वन पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अदर, नाइदर नोइंग nor having any ground to suspect that the person with whom he is entering into a contract is an agent। पता ही नहीं है थर्ड पार्टी को कि ये एजेंट है, और ये एजेंट है तो उसका प्रिंसिपल ये है, और उसको थोड़ा डाउट भी नहीं हुआ है। एजेंट ने इतनी सफाई से काम किया है कि ऐसा ही लग रहा है कि एजेंट ही मालिक। वहां कोई सस्पिशियस एक्टिविटी भी नहीं हुई, कोई ऐसी डाउट भी क्रिएट नहीं हुई थर्ड पर्सन को एजेंट के ऊपर, कि ताकि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सके, कोई इंक्वायरी कर सके, कोई क्वेरी रख सके। इतनी सफाई से काम हुआ है सर। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो सर ये कहाँ से पता चलेगा सर। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल पी, पी मीन्स कौन है सर यहाँ पे, एजेंट, हु ओव्स ₹5,000 टू आर, दैट इज द थर्ड पार्टी, दैट इज द थर्ड पार्टी, सेल्स ₹10,000 वर्थ ऑफ व्हीट टू आर। पी कौन है सर, पी जो है एजेंट है।
एजेंट हु ओस ₹5,000 टू थर्ड पार्टी को मान लीजिए कि एजेंट ने थर्ड पार्टी से 5,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, और उसको 10,000 का माल बेचा जा रहा है, 10,000 का माल बेचा जा रहा है, वर्थ ऑफ वीट टू आर। P is acting as an agent for T in the transaction, but R has neither knowledge nor reasonable ground of suspicious that such is the case. T cannot compel R. Principal cannot compel third party to take the wheat without allowing him to set off his debt. चलिए, तो अब यहाँ पे सेट ऑफ करने की बात हो रही है। मान लीजिए एजेंट ने जो है agent who owes ₹5,000 to R, third party sells ₹10,000 worth of wheat to R. 5,000 रुपये देने हैं, लेने हैं, यूँ समझ लीजिए, सॉरी, P जो है उसने 5,000 रुपीज जो है सर लेने हैं, 5,000 रुपीज लेने हैं सर, किससे लेने हैं सर? थर्ड पार्टी से लेने हैं। सेल्स ₹10,000 वर्थ ऑफ व्हीट टू आर। तो सिचुएशन समझ लेते हैं, 5,000 का जो है 5,000 रुपीज थर्ड पार्टी से लेना है एजेंट ने, ठीक है। अब वो 10,000 का माल बेच रहा है उसको। एजेंट सेल्स 10,000 रुपीज गुड्स टू आर। ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट। तो यहाँ सेट ऑफ की बात आ रही है। तो अगर 10,000 हमने किसी से लेने हैं, 5,000 हमने किसी से लेने हैं और हमने 10,000 का माल दिया, तो अब हमें कितने रुपए सिर्फ लेने के बनते हैं सर थर्ड पार्टी से? 5,000 रुपीज लेने के बनते हैं सर थर्ड पार्टी से। 5,000 सेट ऑफ हो गया सर। तो यहाँ पे सेट ऑफ का उपयोग करना चाहिए, ये बेनिफिट मिलना चाहिए, थर्ड पार्टी को मिलना चाहिए। थर्ड पार्टी शुड सेट ऑफ दिस 5,000 डेप्ट एंड दिस बेनिफिट शुड बी गिवन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर पता चलता है कि ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है और ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? उस सिचुएशन में ही होगा कि भाई अगर आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलने वाला है, पहले से डिसाइडेड है, नहीं भी डिसाइडेड है, तो आप बाद में ये देख सकते हैं सर, और इसका बेनिफिट आप 100% ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि पीछे से पता चला ये प्रिंसिपल है और आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं सर। नहीं, परफॉर्मेंस जिस तरीके से आपको देनी चाहिए आपने 100% देनी, वहाँ देनी होगी सर।